ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, पवन कुमार, सीमा राणी, अशोक कुमार, सुनीता राणी, जगजीवन राम, रेखा राणी, जशन कुमार, अभिषेक, दीपांशु शर्मा, रोहित शर्मा, केशव शर्मा, रजनी शर्मा, महनूर शर्मा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਜ਼ਾਲੀਆ ਰਾਇਲ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਲਲਹੇੜੀ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸੋ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਨ 1932 ਵਿੱਚ ਬਿਰਦਨੌ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੇਵੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹਾਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸੈੱਟ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ASI ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ ਖੰਨਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਪੋਤਰੀ ਮਹਿਨੂਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। बहन कहती है कि भाई यदि मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरा भाई मेरे साथ चलेगा। रिश्तेदार, समाज, आस पड़ोस सभी बच्चे उस बच्चे के ऊपर आशा लगा कर रखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है और बड़ा होकर जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जो इस धरती के ऊपर अच्छा कर्म करता है तो उसको कहते दुनिया भी याद करती है। जैसे कि भगवान कहते हैं कि जो प्राणी अच्छा कर्म करता है तो अच्छा, और यदि माड़ा कर्म करता है तो वैसा ही भगवान ने एक अपना बही खाता लगा कर रखा है, तो उसमें लिख दिया जाता है मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या राजा क्या
साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबके कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबके कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। यदि कोई माड़ा कर्म करता है तो वैसा ही कहते उसके बही खाते में लिख दिया जाता है। यदि कोई अच्छा कर्म करता है तो वह भी उस इंसान के बही खाते में लिख दिया जाता है। जैसे आज के युग में, आज के समय में हम देखते हैं कि जो सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे होते हैं, हम घर बैठे अपने कारोबार को और जहाँ भी हमने कैमरा ला रखा अपने घर बैठे उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के भी कहते लाखों आंखों से प्राणी को देख रहा होता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही लिख देते हैं। तभी कहा जाता है उजले कर्मे कर ले बंदे, कर्म न करियो मारा। उजले कर्मे कर ले बंदे, कर्म न करियो मारा। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। कहते हैं जिस प्राणी को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मैं जो पाप कर्म कर रहा हूँ वह मुझे भगवान देख रहे हैं, तो कोई भी प्राणी पाप नहीं करेगा। पाप नहीं करेंगे तो नरकों में यातनाओं से प्राणी मुक्त हो जाता है। जीवन और मरण के चक्कर से प्राणी मुक्त होकर इस संसार से जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं इस धरती के ऊपर बड़े बड़े योद्धा हुए जो इतने बलशाली थे कि अपने बल के ऊपर बड़ा गुमान था उनको। रावण को अपनी विद्या के ऊपर और अपने बल के ऊपर बड़ा गुमान था। भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन पूरी पृथ्वी को जीत लेने वाले योद्धा थे। अपनी शक्तियों के ऊपर पूरा उनको यकीन था कि हम इस पूरी पृथ्वी को जीत सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने हजारों वर्षों की तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की थी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि भगवान ने जो दो खेल बनाए हैं उन खेल से कोई भी बच नहीं सका। एक जन्म का खेल और दूसरा मौत का खेल। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर यह दो खेल हर प्राणी को खेलने पड़ते हैं। जिस प्राणी का जन्म होता है उस प्राणी का जो मरण वह भी निश्चित होता है। क्योंकि जन्म और जो मृत्यु है, जैसे किसान खेती को बीजता है
खेती पक जाती है और किसान क्या करता है, उस खेती को काट लेता है। इसी प्रकार इंसान रूपी खेती को भी भगवान भी जब इस इंसान की आयु समाप्त हो जाती है तो काट लेते हैं। तो मृत्यु निश्चित है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है हमें इस बात का ज्ञान रहता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी आयु बढ़ रही है और मृत्यु का समय नज़दीक आ रहा होता है। कई बार जो हमारे बुजुर्ग होते हैं अपने बच्चों से इस प्रकार कहकर जाते हैं, जब निकले प्राण मेरे तन से मुझे गीता ज्ञान सुना देना। जब निकले प्राण मेरे तन से मुझे गीता ज्ञान सुना देना। मुझे गीता ज्ञान सुना देना, तुलसी चरणामृत पिला देना। मुझे गीता ज्ञान सुना देना, तुलसी गंगा जल पिला देना। जब निकले प्राण मेरे तन से मुझे गीता ज्ञान सुना देना। मेरी लाश को बर्बाद मत करना, यमुना के किनारे लगा देना। मेरी लाश को बर्बाद मत करना, यमुना के किनारे लगा देना। जब निकले प्राण मेरे तन से अन सुना देना। जब निकले प्राण मेरे तन से मुझे गीता ज्ञान सुना देना। मुझे गीता ज्ञान सुना देना, तुलसी चरणामृत पिला देना। मुझे गीता ज्ञान सुना देना, तुलसी गंगा जल पिला देना। जब निकले प्राण मेरे तन से मुझे गीता ज्ञान सुना देना। चंदन की लकड़ी मंगा करके मधुवन में चिता बना देना। चंदन की लकड़ी मंगा करके मधुवन में चिता बना देना। जब निकले प्राण मेरे तन से मुझे गीता ज्ञान सुना देना। मुझे गीता ज्ञान सुना देना, तुलसी चरणामृत पिला देना। जब निकले प्राण मेरे तन से मुझे गीता ज्ञान ना। जब राम ही राम कह करके मेरी चिता को आग लगा देना। जब राम ही राम कह करके मेरी चिता को आग लगा देना। जब निकले प्राण मेरे तन से मुझे गीता ज्ञान सुना देना। मुझे गीता ज्ञान सुना देना, तुलसी चरणामृत पिला देना। मुझे गीता ज्ञान सुना देना, तुलसी गंगा जल पिला देना। जब निकले प्राण मेरे तन से मुझे गीता ज्ञान सुना देना। सखियों की मंडली बुला करके मेरा भजन कीर्तन करा देना। सखियों की मंडली बुला करके मेरा भजन कीर्तन करा देना। जब निकले प्राण मेरे तन से मुझे गीता ज्ञान सुना देना। मुझे गीता ज्ञान सुना देना, तुलसी गंगा जल पिला देना। जब निकले प्राण मेरे तन से मुझे गीता
गीता ज्ञान सुना देना। और जिस सब यात्रा के साथ कहते हैं उसका परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार, आस पड़ोस के, उसका शहर तक नहीं जाता, सब छोड़ देते हैं, तो ऐसा प्राणी कहते स्वर्ग में नहीं जा सकता। ऐसा प्राणी तो केवल नरक में ही जाएगा। क्योंकि जिस प्राणी को उसका परिवार त्याग देता है, जिस प्राणी को उसका शहर त्याग देता, उसका देश त्याग देता है, ऐसे प्राणी को कहते भगवान भी अपने पास नहीं बुलाना चाहते होंगे। और जिस प्राणी को उसका परिवार, उसका समाज, उसका शहर, उसका देश मानता है, ऐसे प्राणी को कहते भगवान भी अपने पास बुलाना चाहते होंगे। तो यही शव यात्रा को देखकर मेरी बेटी ने जैसे मुझे बताया कि हे माता, इस शव यात्रा के साथ बहुत संख्या है और दूसरी शव यात्रा के साथ कुछ 2-4 लोग ही थे, तो यही देखकर हमने कहा था कि मरने वाला प्राणी तो स्वर्ग में गया होगा, और दूसरी बार में कहा था कि मरने वाला प्राणी तो नरक में गया होगा। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, यदि हम अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारा परिवार और हमारा शहर, यह दुनिया हमारा साथ देती है। जो माड़ा कर्म करता है उसको परिवार भी त्याग देता है, हमारा शहर भी त्याग देता है, हमारा समाज भी उस प्राणी को नहीं अपनाना चाहता। इसीलिए हमेशा धर्म कर्म करने से ही मोक्ष मिलता है, यही सोचकर करना चाहिए। क्योंकि यह जो रिश्ते नाते हैं एक दिन टूट जाएंगे। जैसे हम पानी पीने के लिए किसी कुएं के पास इकट्ठा होते हैं और पानी पीने के बाद क्या होता है कि सब अपने अपने घर को चल देते हैं। इसी प्रकार यह दुनिया का आवागमन है, जिसकी आयु समाप्त हो जाती है इस दुनिया से, वह चला जाता है, और जितनी जितनी भगवान ने आयु लिखी होती है उस आयु को भोगकर इस दुनिया से प्राणी चला जाता है। तो आज हमारे बीच श्री सोमनाथ शर्मा जी, जिनकी आयु 87-88 वर्ष के करीब होगी, एक फले फूले परिवार को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए हैं। और हम सब भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके 3 लड़के हैं, जो बड़ा पुत्र है पवन कुमार और पौत्र जसनदीप, अशोक कुमार जी पुत्र, पत्नी संगीता रानी जो पुत्र वधू, पौत्र अभिषेक शर्मा, पुत्री दीपांशु शर्मा और पुत्र जगजीवन राम, पत्नी रेखा रानी, पौत्र रोहित भारद्वाज और पौत्र वधू रजनी शर्मा, पर पौत्री महानूर शर्मा और पौत्र केशव शर्मा जी। और 3 लड़कियां हैं, कमला शर्मा, आशा शर्मा, नीलम शर्मा। फले फूले परिवार को छोड़कर गई हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। कहते हैं कि हम पूरी जिंदगी कार्यों में खपा देते हैं, लेकिन अंत समय जब मौत आती है तो हम भगवान से क्या कहते हैं। पहले हमें कुछ नहीं याद रहता, लेकिन जब मौत आ जाती है, यमदूत लेने के लिए आ जाते हैं, तो यमदूतों से प्राणी क्या कहता है, भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बोलाबो आयो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाबो आयो राम को, बुलाबो आयो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर पोता से दादाजी तो स्वर्ग चाल्या, दादाजी तो स्वर्ग चाल्या, कौन लड़ावो वो लाड, बुलावो आयो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਨੀਕ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਣਾ ਰੌ ਨਾ ਹੋ ਹੈ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੂੰ ਫਕੀਰ, ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋ ਨਾ ਮੰਨੇ ਧੀਰ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 88 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਈਸਰੂ ਤੋਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਵੇਂ ਸਾਧੂ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਲੈਂਡੋ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਉੱਥੋਂ, 6-7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। 5 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ ਡੈਡ, ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ ਮਮ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੱਬ ਜਿੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਡੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 10-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗੁਣੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਲਕਾ ਖੰਨਾ ਦੇ MLA ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 33 ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਂਦ ਆਪ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਹਨੇਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਏਕਤਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਔਰ SG ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖੰਨਾ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਰੋਲਸ ਰॉयस ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਕਿਉ ਰਾਵਣ ਕਿਉ ਜਾਗੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਸੰਬੰਜਨਾ ਸਭ ਕਲਾਵਨਹਾਰ, ਜੋ ਸਵਾਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਸ ਦਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
सो मैं ज़्यादा समा ना लेंदा होया इस समुचे परिवार वालों साढ़े बहुत सत्कारयोग जगजीवन जी ਜਿਹੜੇ हमेशा रोजाना ही असीं मिलते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की जॉब करते हैं इन्नी ईमानदारी नाल मेहनत नाल अखबारां दे विच भी ना आउंदा उन्हां दा ये सारी बजुर्गों की देन है। सो मैं समुचे परिवार वालों क्योंकि समय की घाट करके बहुत सन्मानित शख्सियतां बैठियां ने सबनां नूं समा नहीं दिता जा सकता समुचे सोमनाथ जी के परिवार वालों सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तुसीं इस दुख की घड़ी दे विच आके शरीक होए हो क्योंकि सियाणे कहते हैं जे आपां किसी की खुशी दे विच चले जाए तो दुगनी हो जाती है जे किसी दुख दे विच आपां शामिल होने तो अद्धा रह जाता हो। सो जिथे मैं परमात्मा के चरणों दे विच अरदास करदा भी साडे पूजनीय सोमनाथ जी नूं अपने चरणों के विच निवास बख्शिश करन उत्थे समूह संगत नूं बेनती करदा परिवार वालों कि लंगर बाहर वरत रहा चाह का लंगर भी तैयार है सारी संगत ने छक के जाने की कृपालता करनी हुण आपां आरती दे विच भी शामिल होना बहुत बहुत धन्यवाद। मौत बारे प्यार बारे बहुत गल्लां ने चाहे ग्रंथ लिख लो पर मैं तो धन्यवाद करने वास्ते आया। ये जो परिवार है शायद मेरे नाम मनी है मेरे को पढ़ना होता सी एक बार मैं मिलने गया ये बुजुर्ग बाहर बैठे वो बैठ के लत्तां घुटन लगे मैं कोई सवाल है वेरी रेयर अजकल संतां दे बोलते हैं बिरध आश्रम जोड़ते हैं ये सेध मिलती है इन प्यार करने वाधू चीज मांगते हैं। जिन माता पिता की सेवा कियो 3 तीर्थ कियो ना कियो जानता सब ने पहला चाहे दुनिया दूसरिया देखी मैंने नहीं पता हूँ इन्होंने बादशाह वाला जीवन बतीत किया बड़े सरल बड़े स्पष्ट बड़े ईमानदार बड़े दूजे काम आने वाले बड़ी शख्सियत सी इन्हें लड़के का कहना कि है बड़ा मशहूर बड़ा निमरता बड़ी कोशिश हो गई कुछ कोटियां चलाना तो बहुत घट लोगों ने इसे आता है अजकल। सो मैं तो इस परिवार तो बड़ा ही प्रभावित है ये सिक्ख्या लेनी चाहिए है जिहड़े बुजुर्ग ने ये तोहफा ने ये मुड़ के मिलना नहीं उन्होंने मुड़ के जे चले गए ये सारे समझ लेना चाहिए ये समझ नहीं आता बाद आ जाता है पर जो चले जाते हैं जब गड्डी स्टेशन लंघ जाती है फिर भी फायदा नहीं। सो मैं सारे का बहुत बहुत गल्लां तो बहुत ने मैं बड़ा मशहूर है जो इतने पहुँचे ने बुजुर्गों की मैं शख्सियत देखी है इन्हों का सेवा भाव देखा है बहुत घट देखने मिलता है सब मिलता है सेहत मिलती है बड़ा स्नेहा मिलता है। इस परिवार को ऐसा सेवा करनी चाहिए है नहीं तो गोल चक्कर है धरती गोल है जो तुम करोगे वो थोड़ा मिल जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे ने लंगर चाह पानी पी के जाना बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.